So welcome everyone. Uh, Last class में हम लोग ने we had discussed about various programming methodologies and we had seen 7 types of methodologies. I had briefly told you about these methodologies. So number one was waterfall model या waterfall model methodology भी बोलते हैं. So model is a linear sequential model. इसको हम लोग linear sequential model भी कहते हैं. Linear sequential models are those models which are not flexible to accommodate changes in the requirements. So if we are following waterfall model, or which is also known as linear sequential model, the requirements cannot be changed. When when the requirements are benchmarked, or when the requirements are fixed, then we follow the waterfall model. It is used for fast development and it has very clearly defined phases, and the phases which are proposed in waterfall model are the basic phases through which any software development process goes on. So waterfall model is a base model which is being used for software development. Second type of model that can be used is prototyping model, where prototypes are created. Prototype का मतलब क्या होता है? Prototype um, is a workable miniature model of an actual software. It is a workable miniature model of an actual software. So miniature model क्यों बोल रहे हैं? Because वो जो मॉडल तैयार करके दिया जाता है, that model is, and the customer tests that particular model and suggests the changes. Then the changes are performed on that miniature model and the model evolves to the next phase, and version is created, new version of the model is created, and in that manner the software development process goes on to some level, up till some level of iterations. थर्ड जो डेवलपमेंट मॉडल है वो है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी. एजाइल में जो है इट इज ए काइंड ऑफ ए रिपीटेटिव मॉडल, एंड उसमें भी जो है वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल का ही एक जो है आपको व्यू मिलेगा, लेकिन बट इट इज meant for fast and very quick development of projects. Then comes rapid application development model. Fourth model है rapid application development model, where large projects need, if we want to develop large projects within a very small tenure of time, then we adopt the rapid application development model. There is a fifth model methodology which is called as dynamic system development model. Here also the software development takes place in a very rapid way, and the main attractive point or attractive feature of this kind of methodology is that it can accommodate any changes in the requirements during the development process. So किसी भी phase में कभी भी अगर requirement changes हो रहे हैं, that can be accommodated. Sixth जो model है, which is spiral model. Spiral model is an iterative model. Here also versions of the software are created and large softwares are created in a very standard way. और ये भी इसका भी एक खासियत है, we'll see that. और लास्ट में आता है स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, वेयर the entire development is done to speed up or expedite the existing projects which have become stale. तो कुछ कुछ मॉड्यूल्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स में, कभी कभी ऐसा होता है, because a big software development company will be developing more than say 20 to 50 projects at a time or 100 projects at a time. So ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो लैग बिहाइंड कर गए हो, उनका शेड्यूल लैग बिहाइंड कर गया हो ड्यू टू मेनी रीजंस. हो सकता है जैसे ड्यू टू मॉनेटरी रीजंस भी हो सकते हैं, ड्यू टू मैन पावर रीजंस भी हो सकते हैं, ड्यू टू वर्जन रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सो वहां पे जिन प्रोजेक्ट्स में देरी हो गई है और वो पीछे रह गए हैं,
उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं. एंड स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलरली यूज मेथोडोलॉजीज, बिकॉज ये एक तरीके का कहना चाहिए रिजुनेशन क्रिएट करता है, एक तरीके का जो है पावर बूस्टर जैसे काम करता है टू द slowly moving projects. So these are the 7 main type, very common way methodologies which are used for software development. एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये 7 जो मॉडल्स हैं उनका यूज किया जाता है. इनमें से कोई भी एक मॉडल यूज हो सकता है, या तो हाइब्रिड टेक्निक भी, अप्रोच भी यूज होता है, जिसमें कुछ हाफ में एक मॉडल यूज करते हैं, फिर दूसरे हाफ में दूसरा मॉडल यूज करते हैं, ऐसे भी किया जाता है. So it all depends upon the requirements and the change in the requirements. And the development methodologies are not limited to these 7. इनके अलावा भी there are many other methodologies which are coming up according to the need of the hour. The methodologies are developed. So these are the standard development methodologies which are used. ये हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. So today I will request everyone to open their class notes and put on on every page the header. हर एक पेज में हेडर होना चाहिए, डेट, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, सेक्शन. सो आपका नोट्स कॉपी आप तैयार कर लीजिए. और हर एक नोट्स कॉपी के हर एक पेज में अभी जो आज का जो लेक्चर होगा उसका डेट जरूर डालेंगे. सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन जरूर उसमें लिखना है. So first we move on to the first methodology, which is the waterfall methodology. Waterfall methodology को हम लोग बोलते हैं, it is also known as linear sequential model या linear sequential methodology. So why it is known as linear sequential? Because all the phases are executed in a linear fashion. ठीक. So and also sequential fashion. So sequential का मतलब क्या होता है? It is not iterative in nature. Sequential is not iterative. Iterative is not sequential. ठीक. So waterfall model is a sequential model where all the phases of development once performed are not revisited again. ठीक. एक फेज को अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं, उस फेज में वापस नहीं आते हैं. is a very prominent feature of waterfall model, and this is the model which was created as the basis when software development जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहा जाने लगा था. When the software development was considered as an engineering process, then it was a need to develop or to define some standard steps for development of software. प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करने के लिए, इसको इंजीनियरिंग का दर्जा देने के लिए we needed to specify some standard phases, that those phases should be so standard that every software development should go through those phases. तो जैसे किसी भी चीज को स्टैंडर्डाइज करना हो तो एक मैथमेटिकली प्रूवन चीजें होनी चाहिए जिसको बार बार हम प्रूव कर सकें. वैसे ही इंजीनियरिंग में भी वैसे ही हम करते हैं कि हम कुछ मॉडल्स बनाते हैं जो स्टैंडर्ड बन जाते हैं, बेंचमार्क बनते हैं. स्टैंडर्ड और बेंचमार्क का क्या मतलब होता है कि बेंचमार्क का मतलब है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, अनचेंजेबल, कॉन्स्टेंट्स. तो हम लोग जो है इंजीनियरिंग में व्हाट वी डू, वी क्रिएट सम बेंच दैट आर सो स्टैंडर्ड, so well created and well thought about, so that they don't change. वो कुछ बेसिक ट्रुथ की बेसिस पे, कुछ बेसिक ट्रुथ रूल्स के बेसिस पे जो है बनाया जाता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल बेसिस हो या फिजिकल बेसिस हो या कमर्शियल बेसिस हो. मतलब ऐसा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो स्टैंडर्ड है, जो ट्रुथ है, जो एक ट्रुथ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वाटरफॉल मॉडल वाज दस क्रिएटेड to represent a standardized model so that it can be followed for every kind of software development process. So इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे waterfall model में there are the phases: analysis phase, design phase, implementation phase, system testing phase and maintenance phase. So see, these are the 5 major phases through which any software development process goes. ये एक standard phases है
और इसके थ्रू जो है एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हैज टू गो. इसके बिना नहीं हो पाएगा. यू कैन ऑब्जर्व एनालिसिस फेज जो है, जैसे सबसे पहला फेज है एनालिसिस फेज. एनालिसिस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन. सो हाउ डू वी डू प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन? इसमें भी the discussion with the customer, understanding what the customer needs, understanding the problem that the customer is posing, and trying to find out the solutions related to the problem. So उसका पूरा planning और requirement definition का मतलब होता है technical requirements as well as customer non technical requirements. तो customer point of view से जो requirements होते हैं, the requirements that the customer proposes, which are generally non-technical in nature, and converting those non-technical requirements into technical requirements, so that software engineers can understand those technical requirements, so that the software gets implemented properly. So planning and requirement definition का जो phase है उसको analysis phase बोला जाता है. That phase is a very crucial phase, because in this particular phase the entire planning of the software is done. Overall planning जो है पूरे software का यहीं पे कर दिया जाता है, and that becomes the basis for the entire software development process. So जो ये जो basis बनता है वो कांस्टेंट रहता है पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में. ये कांस्टेंट बन जाता है. सो एनालिसिस फेज हेल्प्स अस टू क्रिएट द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन डॉक्यूमेंट. इट इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज यूज्ड थ्रू आउट. ये जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको भी डिफाइन करता है. सो एनालिसिस फेज में बहुत सारी चीजें करते हैं हम लोग, एंड द एनालिसिस फेज इज डन बाय एक्सपर्ट्स दे who are very expert in the particular field of engineering, especially software development mein. Say for example, you are going for developing a web based commercial application for a banking system. तो जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना चुके हैं इंजीनियर्स ऑलरेडी, जिनका कई साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाने का, उन लोग को एनालिसिस फेज में एज ए ग्रुप बिठाया जाता है विद द कस्टमर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे. बिना एक्सपीरियंस के अगर प्लानिंग कर दें और रिक्वायरमेंट डेफिनेशन बना दें तो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट है वो जेपरडाइज हो जाएगा, एंड इट विल नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग यूजफुल. So it is very necessary that the a very experienced group of engineers should perform the analysis phase. After the analysis phase, the output is planning and requirement definition document that is given to the डिजाइन फेज. सो एनालिसिस फेज में क्या हो रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिक्स कर दिए जाते हैं. वाटरफॉल मॉडल में एनालिसिस फेज में रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड. सो अगर फिक्स हो गया इसका मतलब दे कैन नॉट बी चेंज, मतलब उसको बेंचमार्क कर दिया जाता है. सो फॉर दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द रिक्वायरमेंट्स विल बी बेंचमार्क्ड एंड दे कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस. और एक बार बेंचमार्क हो गया वो कांस्टेंट बन जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद वो जो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन डॉक्यूमेंट है उसको दे दिया जाता है डिजाइन फेज में. सो द डिजाइन ग्रुप, द डिजाइन एक्सपर्ट्स, they understand the planning and requirement specification, and according to the software requirement specification document they create the design, architectural design of the entire software. Architectural design is a gross design of the entire software development. So पूरा के पूरे software development में क्या क्या modules बनेंगी और ओवरऑल वो मॉड्यूल्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगी, इसका पूरा डिटेल्स आर्किटेक्चरल डिजाइन में दिया जाता है. सो आर्किटेक्चरल डिजाइन गिव्स अस एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सिस्टम, एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट. आर्किटेक्चरल डिजाइन के बाद डिटेल्ड डिजाइन आता है. उसी में डिटेल्ड डिजाइन आएगा, जो डिटेल्ड डिजाइन में जो है माइक्रो डिटेल्स बताए जाते हैं फॉर एवरी मॉड्यूल. जो भी मॉड्यूल्स आपने आर्किटेक्चरल डिजाइन में बताए हैं उनके जो सब मॉड्यूल्स हैं, उनके जो कंट्रीब्यूटिंग मॉड्यूल्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स, उनका इंटरफेसिंग, उनके बारे में डिटेल्स, इनपुट आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप्स, डेटा स्टोरेज, many things are detailed in a detailed manner. Many things are put, and those all are programming language independent.
फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स है, दुनिया भर का चीजें अभी जो अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है. वी हैड सीन इन द लास्ट लेक्चर्स, फ्यू लेक्चर्स, कि कैसे एल्गोरिदम्स, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूएमएल डायग्राम्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको बना के पूरा बहुत डिटेल में, पहले तो आर्किटेक्चरल डिजाइन बनता है, दैट इज एन ओवरऑल डिजाइन. उसके बाद डिटेल्ड डिजाइन बनता है, दैट इज ए माइक्रो लेवल डिटेल ऑफ द आर्किटेक्चरल डिजाइन. ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डिजाइन डॉक्यूमेंट कहलाता है. और वो डिजाइन डॉक्यूमेंट इज देन व्हेन इट इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, इट इज वेरीफाइड विद द प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट डेफिनेशन. इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें डॉटेड मार्क लगा के, एरो मार्क लगा के, आई हैव स्पेसिफाइड वेरीफाई करके लिखा हुआ. वेरीफाई मतलब डिजाइन फेज में बैठे बैठे जो इनको प्लानिंग और रिक्वायरमेंट डेफिनेशन का जो डॉक्यूमेंट मिला था उसको बार बार देखते हुए आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन को तैयार करते हैं. एक बार ये बन गया, व्हेन इट इज फाइनलाइज्ड, इसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है. अब डिजाइन फेज में टेस्ट डिजाइन भी बनते हैं, टेस्ट केसेस भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है जो अपन ने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे. ये सब बनने के बाद ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर इंटीग्रेटेड into a single booklet of design phase document, and that design phase document booklet is given to the implementation phase. Implementation phase में the details which are provided from the design phase are implemented according to a particular programming specific language. Programming language specific वर्जन में उसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डिजाइन फेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट वे में रिप्रेजेंटेशन रहता है. इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट फॉर्मेट में पूरे डिजाइन को कन्वर्ट किया जाता है. इट इज अ कन्वर्शन काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज बीन डन. सो ऑल द आर्किटेक्चरल डिजाइंस, all the detailed designs are converted into programming language specific code that is done in implementation phase. During the implementation phase, the design phase document is continuously used to verify whether we are proceeding in a right direction or not. So ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट हमेशा चलता रहता है. जब तक इम्प्लीमेंटेशन फेज चलता रहेगा तब तक आर्किटेक्चरल डिजाइन और डिजाइन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को बार बार यूज किया जाएगा for verification that whether the production is going on according to the designs or not. So implementation phase में the main activity which is being performed is coding, debugging and unit testing. अब आप सोच रहे होंगे यूनिट टेस्टिंग कैसे हो सकता है, टेस्टिंग फेज तो अभी आया नहीं. यूनिट टेस्टिंग इज ए स्पेशल काइंड ऑफ टेस्टिंग विच इज बीइंग परफॉर्म्ड ऑन ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड. सो जितने भी, जैसे आप जैसे 2 लाइन का कोड लिखते हैं और दोनों को आप टेस्ट करते हैं वेदर दे आर बिहेविंग प्रॉपरली और नॉट, परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन और नॉट. तो ये 2 लाइन 3 लाइन को एक साथ टेस्ट किया जाता है, या सिंगल लाइन को भी टेस्ट करते हैं फॉर एक्यूरेसी एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड अदर थिंग्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. सो उसके बेसिस पे जो टेस्ट किए जाते हैं उनको यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है. एंड यूनिट टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोडिंग फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज. सो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं और यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं. सो एक बार जब हम ये कोड करके, डिबग करके यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, तो हमको जब when we are assured that the quality of the software is according to the designs given, the implementation of the software is according to the design given, then we proceed to the system testing phase. So the entire system is tested. System testing मतलब जो कोड करके आपने सिस्टम बनाया था, the software system that you developed from the coding phase is tested completely as a single unit. You in system testing phase. System testing phase में there are various types of tests performed. जैसे बहुत ही popular test है black box testing, white box testing, integration testing, acceptance testing. ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्ट्रेस टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. देयर आर numerous types of tests which are performed. Testing phase में it is very very necessary to create documents related to each and every kind of tests performed. The test cases are acquired from the design phase test designs. डिजाइन फेज में जो टेस्ट डिजाइंस क्रिएट किए गए थे, उन टेस्ट डिजाइंस को सिस्टम टेस्टिंग फेज में यूज किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग द कोड. तो कोड अवेलेबल जो है, जो सिस्टम हमको कोडेड जो सॉफ्टवेयर सिस्टम मिला है, उसको टेस्ट करने के लिए डिजाइन फेज में जो टेस्ट डॉक्यूमेंट्स, जो टेस्ट डिजाइंस बनाए गए थे, उनको यूज करके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर
the system is according to the requirements or not. If the system is not according to the requirements, then it cannot be given to the customer. So टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग जो होता है वो बहुत ही रिगरस टेस्टिंग फेज है, जहाँ पे बहुत सारे टाइप के टेस्ट किए जाते हैं। तो एक जो कॉमनली जो रिप्रेजेंटेड टेस्ट हैं वो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज इंटीग्रेटिंग द मॉड्यूल्स together and testing their integrated output. So whether they are performing correctly or not, when they are integrated together as a whole, the system should work as a single unit. When the modules are individually tested, they should work properly. When the modules are integrated together to make the entire system as a single unit, should work integratedly as a single unit properly. For that, system testing phase is performed. In After performing integration testing, acceptance testing is very necessary. We had already studied about alpha testing and beta testing. This is a part of acceptance testing, where the software is tested according to the point of view of the customer. So whether the customer will accept it or not, from that point of view, the entire software is tested. So acceptance testing is a very major phase. If the system fails the acceptance testing, that means we have to reconsider the design, implementation and every phase. So अगर डिजाइन सही नहीं हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन बिगड़ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा. So all the phases need to be done in a very cautious way, proper way. Then only acceptance test pass hota hai hamara jo system hai. So after passing the acceptance test, it is delivered to the customer. Customer को deliver किया जाता है and the product enters to maintenance phase, enters into maintenance phase. So when the product enters into maintenance phase, इसमें मेन काम जो रहता है वो है एनहांस, एडेप्ट एंड फिक्स. ये मेन उसमें काम रह जाता है. सो एनहांस करना मतलब टू प्रोवाइड पैचेस, टू अपग्रेड द सिस्टम. ये कब किया जाएगा? व्हेन देयर इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट और a warranty contract or a guarantee contract between the software company and the customer. तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहता है कि वो कितना उनको एनहांसमेंट्स देंगे, कितने उसको अपडेशंस दे सकते हैं. और जो करंट एनवायरनमेंट में कस्टमर के विजिनिटी पे, कस्टमर के साइट पे जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं उसको इंस्टॉल करते हैं, सो देयर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैज टू अडेप्ट विद द करंट एनवायरनमेंट. उनका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसमें उसको इंस्टॉल करना, प्रॉपर्ली उसको रनिंग कंडीशन पे लेके आना और कस्टमर को समझा देना, ट्रेनिंग देना. इसमें कस्टमर ट्रेनिंग ऑल्सो इज ए वेरी प्रोमिनेंट स्टेप विच इज बीन परफॉर्म्ड. ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देना कस्टमर को, हेल्प डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके देना, ऑपरेशन मैनुअल्स क्रिएट करके देना, so that the customer can independently work on the product without any help from the company. जैसे हमसे उसको हेल्प की और जरूरत ना पड़े, वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए to use the product. And if there arises any bugs, अब अगर मेंटेनेंस फेज में कोई बग्स आ जाते हैं तो उसको फिक्स भी करना पड़ता है. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी. सो ये जो फेजेस आप देख रहे हैं, ये फेजेस जो है स्टैंडर्ड फेजेस हैं. और जब इनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं विदाउट रिपीटिशन, मतलब हम किसी पुराने फेज में वापस नहीं जाते हैं. मतलब एक बार अगर पूरा एक फेज कंप्लीट हो गया, जैसे अगर एनालिसिस फेज कंप्लीट हो गया है, हम डिजाइन फेज में आ गए हैं, वी डू नॉट गो बैक टू द एनालिसिस फेज. सो अगर ये नॉन इटरेटिव अगर नेचर है तो इसको हम लोग वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं या लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल कहते हैं इसे. ये जनरली लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल्स आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एनी एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम टू एन ऑटोमेटेड सिस्टम. कोई भी अगर एग्जिस्टिंग मैनुअल सिस्टम है उसको अगर ऑटोमेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने का अगर हमको काम मिला है तो वाटरफॉल मॉडल इज द बेस्ट सूटेड मॉडल, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट्स चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाता है. ठीक. सो वंस द सिस्टम starts developing, it is not iterative, so it will not go back. So the requirements has to be benchmarked and fixed before the starting the implementation. So
it is a very kind of strict kind of a methodology, but it is one of the very uh, uh, fundamentally used methodologies. So this is about waterfall methodology, waterfall model, या इसको linear sequential model भी कहते हैं. ठीक. तो सर हाँ बोलिए. सर इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूनिट टेस्ट समझ में नहीं आया. इम्प्लीमेंटेशन में जो यूनिट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है टू टेस्ट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड. अब से हमने लिखा, जैसे आपने सी प्लस प्लस में या सी में प्रिंटफ लिखा, ब्रैकेट में डबल कोट्स में परसेंटेज डी लिखा है, फिर डबल कोट्स कंप्लीट किया, कॉमा लिखा, ए लिखा, ब्रैकेट कंप्लीट किया, सेमीकोलन लगाया. तो इसमें क्या होगा, प्रिंटफ से क्या हो रहा है, ए का वैल्यू हम इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे हैं. सो ये जो लाइन आपने लिखा है, इसमें क्या गलती हो सकती है, जैसे सेमीकोलन मिसिंग हो सकता है, ए के जगह पर बी लिख सकते हैं, परसेंटेज डी के जगह परसेंटेज एफ लिख सकते हैं. तो एक ये जो सिंगल लाइन ऑफ कोड को अगर मैं टेस्ट करूं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. तो यूनिट टेस्टिंग जो यस है सर. वो सिंगल सिंगल लाइन ऑफ कोड या एक छोटा सा मॉड्यूल आपने बनाया, फंक्शन बनाया, से आपने एक फंक्शन बनाया टू टू परफॉर्म एवरेज ऑफ से एन नंबर्स. तो वो एवरेज ठीक से बना रहा है कि नहीं, छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा मॉड्यूल है दैट परफॉर्म्स एवरेजिंग. तो उसको टेस्ट अगर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. यस सर. ओके. सो यूनिट टेस्टिंग इज ए पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फेज. याद रखिएगा, यूनिट टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग फेज का पार्ट नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है. बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग छोटी छोटी चीजों को टेस्ट करते हैं, उनको यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है. और जब हम टेस्टिंग फेज में, एक्चुअल टेस्टिंग फेज में आते हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं. दैट इज पूरे होल सिस्टम को एज ए यूनिट समझ के टेस्ट किया जाता है. तो दैट इज अ डिफरेंस, इसको थोड़ा याद रखिएगा. सेकंड जो फेज है, सेकंड टाइप ऑफ जो मेथोडोलॉजी है, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइपिंग मेथोडोलॉजी. तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब ही देखिए, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में. प्रोटोटाइप का मतलब होता है समथिंग विच इज थ्रोएबल. ठीक, जिसको हम लोग एक्सपेंडेबल बोला जाता है. एक्सपेंडेबल, एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है कि उसको हम चाहे तो पसंद आए तो रखें, और अगर पसंद ना आए तो उसको फेंक सकते हैं. सो प्रोटोटाइप का मतलब यही होता है. प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हम क्या करते हैं, वी क्रिएट प्रोटोटाइप्स. प्रोटोटाइप्स का मतलब होता है टेम्परेली वर्केबल सॉफ्टवेयर. मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अगर प्रोटोटाइप कहें, प्रोटोटाइप का मतलब समथिंग, अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच इज थ्रोएबल एंड विच इज इम्प्रूवेबल. वो इम्प्रूव भी हो सकता है, ठीक, इम्प्रूव भी हो सकता है, उसको हम लोग थ्रो अवे भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं इसको. ठीक. तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है कि जो प्रोटोटाइप बन रहा है वो फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर नहीं है. इट इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, बट इट इज काइंड ऑफ ए थ्रोएबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. थ्रोएबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू. सो प्रोटोटाइपिंग मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि इट इज ए काइंड ऑफ ए थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं इसको. तो थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर गिव्स यू सम रिक्वायरमेंट्स, द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आप जो है उसका लिस्ट बनाते हैं रिक्वायरमेंट्स का, और उस रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट करके देते हैं उसको. प्रोटोटाइप मतलब एक वर्केबल सॉफ्टवेयर बना के देते हैं जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा. और जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बहुत डिटेल में नहीं बनाते हैं उसको, मतलब मिनिमम पॉसिबल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेस रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर के. अब होता क्या है कि कस्टमर को आप लिसन करते हैं, you listen to the customer and analyze what are the very very important functions that you need to build the software. So जो कस्टमर को चाहिए, हो सकता है उसको, सोचिए देयर इज ए लिस्ट गिवन बाय द कस्टमर, जैसे उसको 50 फंक्शंस चाहिए. ठीक है, द कस्टमर नीड्स 50 प्रॉपर्टीज और 50 फंक्शनैलिटीज इन योर प्रोडक्ट, इन द प्रोडक्ट. सो व्हाट यू डू, उस 50 में से आप जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो आपको लग रहा है कस्टमर को इसके बिना नहीं चलेगा, वो रिक्वायरमेंट्स को आप उसमें से निकालते हैं. जैसे आपने फिल्टर आउट करके 10 रिक्वायरमेंट्स निकाले, दैट इज
हाई प्रायोरिटी, उसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना के देंगे, उसको कस्टमर को दे देंगे, बना के तुरंत उस प्रोटोटाइप को तुरंत बनाएंगे, जल्दी से जल्दी बना के कस्टमर को दे देंगे। कस्टमर उसको टेस्ट ड्राइव करेगा, टेस्ट ड्राइव करके उसको टेस्ट करके देखेगा, उसमें उसमें वर्क करके देखेगा और आपको बताएगा वो जो 10 मेजर फंक्शनैलिटीज आपने उसमें दिए थे वो सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो फिर आप क्या करते हैं, फिर से कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट्स लिए थे उनके बेसिस पे जो है आप फिर से एक और प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसमें कि बाकी के फंक्शनैलिटीज को भी ऐड करते जाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट बनते जाता है, लेकिन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनता है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो कस्टमर ने कहा था वो ही बना के आपने दिया है, लेकिन as soon as the customer receives the product and start using the product, the prototype, the customer says that नहीं नहीं ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ऐसा कर दीजिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। So when there is a constant change in requirements, then prototyping methodology is used. यहाँ पे जो प्रोटोटाइप बनता है वो थ्रो अवे प्रोटोटाइप है, मतलब अगर कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो उस प्रोटोटाइप को फेंक दिया जाता है, एकदम स्क्रैच से फिर से सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। और अगर कस्टमर को पसंद आए तो फिर उस प्रोटोटाइप को फिर जो है इंप्रूव करना शुरू करते हैं। तो आइदर वी थ्रो अवे द प्रोटोटाइप और वी स्टार्ट इंप्रूविंग द एक्सेप्टेड प्रोटोटाइप। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूसली इटरेटिव प्रोसेस है, रिपीटेटिव प्रोसेस है। सो इसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग मेथोडोलॉजी। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है दैट दिस काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी इज नॉट अप्लाइड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। ये स्मॉल और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक होता है, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स या वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि अगर लार्ज प्रोजेक्ट्स में ये मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे तो जो टाइम है वो इतना ज्यादा एक्सीड हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होगा और बार बार आप नया प्रोडक्ट बना के देते जाएंगे और ये इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। सो इट ओनली कैन बी डन ऑन दोज प्रोजेक्ट्स विच आर स्मॉल इन स्केल। स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक रहता है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता, फेलियर हो जाता है। ठीक। सो कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, व्हेन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक। व्हेन द प्रोजेक्ट टीम इज न्यू, से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट के बारे में हमारे प्रोडक्शन टीम में जो भी मेंबर्स हैं उनको उनकी जानकारी नहीं है, जैसे उस टाइप के प्रोडक्ट्स पहले नहीं बनाए। सो मेरे पास से फॉर एग्जांपल आपके पास एक जावा का टीम है जो जावा डेवलपमेंट करता है, लेकिन उन्होंने कभी भी बैंकिंग प्रोजेक्ट नहीं बनाया जावा में, और बैंकिंग प्रोजेक्ट आपको मिल गया और बोला गया कि आप इसको प्रोटोटाइपिंग मॉडल से बनाइए। तो तब आप प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करके उस बैंकिंग प्रोजेक्ट को ठीक से बना सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट टीम के लिए नया है वो प्रोजेक्ट। ठीक। अगर एक्सपीरियंस टीम है तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनएक्सपीरियंस अगर टीम है, इनएक्सपीरियंस इन द सेंस नॉट इनएक्सपीरियंस इन द सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग, बट इज इनएक्सपीरियंस इन द सेंस ऑफ द सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डन, उस टाइप में अगर इनएक्सपीरियंस है तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम तब भी यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा टीम नहीं होता है डेवलपमेंट के लिए, तब भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होने का जो है भी है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, सो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज यूज्ड। और प्रोटोटाइपिंग मॉडल का एक बहुत बड़ा खासियत है कि बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी आउटकम मिलता है। सो व्हेन द कस्टमर इज इम्पेशेंट एंड वांट्स सम आउटपुट इमीडिएटली, तो उसको प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है आउटपुट्स देना शुरू करते हैं, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्या निकलता है, देयर इज ए वेरी हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है उसको तब यूज करेंगे व्हेन वी कैन परफॉर्म इटरेशन एंड व्हेन वी द प्रोडक्ट इज नॉट वेरी बिग, लार्ज प्रोजेक्ट नहीं है या स्मॉल टू मीडियम साइज प्रोजेक्ट है, तो ये सब ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हो रही हैं डायनेमिकली तब भी ये मॉडल सही है। ठीक है। और उस सब मतलब जैसे डेवलपमेंट टीम के लिए जो प्रोजेक्ट का आउटकम है वो अनसर्टन है, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, तो पहली बार कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग प्रोजेक्ट में पहली बार काम कर रहे हैं, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज अ बेस्ट सूटेड मॉडल। उसके बाद आता है थर्ड है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है वो जो अभी अपन ने प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखा था उसमें जो इटरेशंस आप देख रहे हैं, इटरेशंस मतलब रिपीटिशंस जो देख रहे हैं ना, वो अप्रोच इसमें भी यूज होता है। सो एजाइल प्रोसेस मॉडल जो है वो डेवलपमेंट मॉडल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल ऑन एन इटरेटिव जो है टेक्निक। तो इटरेटिव डेवलपमेंट होता है, इसमें रिपीटेशन होता है,
रिपीटिशन जहां पे भी हो रहा है आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रोटोटाइपिंग होना जरूरी है। प्रोटोटाइपिंग मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनना जो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है बाय द कस्टमर, कस्टमर ही उसको टेस्ट करता है। तो इस टाइप के प्रोटोटाइप्स क्रिएट, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप्स। सो एजाइल प्रोसेस में भी हम लोग इसी टाइप की चीजों को यूज करते हैं, जहां पे प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट्स आर लेड डाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। एंड यहाँ पे एक एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या रहता है कि द नंबर ऑफ इटरेशंस आर फिक्स्ड। कितने बार हम प्रोटोटाइप बनाएंगे वो फिक्स हो जाता है। इसके पहले जो अपन ने देखा था उसमें नंबर ऑफ कितने बार उसके वर्जन्स बनेंगे हम लोग को पता नहीं, लेकिन यहाँ पे द प्रोजेक्ट इज प्लान बिफोर हैंड, द नंबर ऑफ इटरेशंस आर प्लान बिफोर हैंड। इसका मतलब इसमें इनएक्सपीरियंस्ड टीम नहीं रहता, इसमें एक्सपीरियंस्ड टीम रहता है। पिछले वाले मॉडल में अपन ने क्या देखा, जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में इनएक्सपीरियंस्ड टीम रहता है, लेकिन एजाइल में इनएक्सपीरियंस्ड टीम नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस्ड टीम रहेगा जो प्रोटोटाइप्स बनाएगा एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ इटरेशंस में ही डेवलपमेंट होगा। इससे ज्यादा डेवलपमेंट, इससे ज्यादा इटरेशंस फॉलो नहीं करेंगे। सो ईच इटरेशन इज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, जिसको हम लोग एजाइल प्रोसेस, एजाइल मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम की चीजों को एजाइल बोला जाता है, विच टिपिकली लास्ट फॉर 1 to 4 weeks। ठीक, द डिवीजन ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट इज डन इन स्मॉलर पार्ट्स। पहले से ही प्रोजेक्ट को स्मॉलर स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन मॉड्यूल्स को डेवलप करके जो है वो टेस्टिंग की जाती है। सो फेज वाइज डेवलपमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं कि हमको पता रहता है कि इतने फेजेस में पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, मतलब इतने इटरेशंस में पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे भी चेंज इन रिक्वायरमेंट्स जो है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है, और क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इट इज टू बी डन इन अ वेरी फास्ट वे। So, agile software development methodology is a fast-paced development, iterative policy which is used for development. ठीक है, so इसमें प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब चीजें जो है वो रिपीटेटिव वे में की जाती हैं। ठीक, एजाइल डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसका अब थोड़ा, अभी हम थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम दिया है और राइट हैंड साइड में जो डायग्राम दिया है, ये दो टाइप के एजाइल डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं। जो राइट साइड वाले को पहले ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। फिर से देखिएगा, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। तो इसका क्या मतलब है, ये जो वाटरफॉल मॉडल है, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज वाटरफॉल मॉडल स्टेप्स। ये जो वाटरफॉल मॉडल का स्टेप्स है, इसको फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बार बार कर रहे हैं, देखिए रिपीट कर रहे हैं। और जितने बार आप इसको रिपीट करेंगे टेस्टिंग फेज के बाद, ऑब्जर्व दैट फर्स्ट इंक्रीमेंट इज क्रिएटेड, सेकंड इंक्रीमेंट इज क्रिएटेड, थर्ड इंक्रीमेंट इज क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो इंक्रीमेंट बेसिस पे बन रहा है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि यूजर ने आपको 50 रिक्वायरमेंट्स दे दिए, द यूजर हैज गिवन यू 50 मेन रिक्वायरमेंट्स, कि भाई ये 50 मेरे फंक्शनैलिटीज हैं जो आपको मेरे सॉफ्टवेयर में देना है। तो आप क्या करेंगे कि वो 50 में से पहले 10 उठाएंगे और पूरे प्रोडक्ट को बनाएंगे, और वो आपका बन जाएगा पहला इंक्रीमेंट। आप पहले से डिसाइड कर लेंगे 5 इंक्रीमेंट्स में सॉफ्टवेयर बनेगा। पहले इंक्रीमेंट में 10 फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को दिखाएंगे, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट 20 फंक्शन, उसके फंक्शनैलिटीज उसमें फिर से ऐड करेंगे, नेक्स्ट 10 फंक्शनैलिटीज उसमें ऐड करेंगे, टोटल बन गया 20 फंक्शनैलिटीज। फिर ये आपका सेकंड इंक्रीमेंट बन जाएगा। फिर कस्टमर को देंगे, टेस्ट करेगा, कस्टमर एक्सेप्ट करेगा। फिर सेकंड थर्ड फेज में जाएंगे, 10 और उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, आप 30 फंक्शनैलिटीज हो गए। फिर एक थर्ड इंक्रीमेंट बन जाएगा, फिर जो है कस्टमर टेस्ट करेगा। फिर फोर्थ इंक्रीमेंट में 40 फंक्शनैलिटीज दिखेंगे, फिफ्थ इंक्रीमेंट में 50 के 50 पूरे फंक्शनैलिटीज दिखेंगे, और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनकर तैयार। और कस्टमर का एक्सेप्टेंस भी मिलते जा रहा है। सो एट एवरी इंक्रीमेंट कस्टमर एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। कस्टमर अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो पर्टिकुलर इंक्रीमेंट को वहीं पे रोक दिया जाएगा, जब तक कस्टमर उसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड। एज सुन एज द कस्टमर गेट्स सेटिस्फाइड द इंक्रीमेंट इज फाइनलाइज्ड। सो जैसे अभी मैंने बताया कि अगर वी हैव 50 फंक्शनैलिटीज टू बी प्रोवाइडेड इन द सॉफ्टवेयर, सो इन द
फेज वाइज डेवलपमेंट 10 जो है फंक्शंस हम देते जा रहे हैं, और जो है 5 बार इंक्रीमेंट्स क्रिएट करेंगे, तो 5 इंक्रीमेंट्स के बाद जो 5th इंक्रीमेंट होगा उसमें 50 के 50 पूरे के पूरे फंक्शनलिटीज सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, एंड दैट टू एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। तो लास्ट जो 5वां इंक्रीमेंट बनेगा, दैट विल बी द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट द नीड ऑफ रिकंसिडरिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज द एडवांटेज। द एडवांटेज इज दैट 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो एजाइल डेवलपमेंट में 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट इट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर टाइम लिमिट है तो ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर सकते। टाइम लिमिट अगर ज्यादा है तो ठीक, टाइम लिमिट अगर कम है तो ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता। मीडियम साइज टू स्मॉल साइज प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। हो सकता है अच्छा कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो अगर कस्टमर इज रेडी टू गिव मोर टाइम to you for development, then this is the best possible arrangement, which is agile software development methodology. इसमें जो लेफ्ट साइड का जो डायग्राम आप ऑब्जर्व करिएगा, इसमें यही चीजें जो है मैंने आप देख रहे होंगे, ये सर्कुलर वे में जो है प्रेजेंट किया गया है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग से शुरू होता है। एक्चुअली ब्रेन स्टॉर्मिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस जहां पे करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ सेशन वेयर all the experts sit and try to find out the solutions, or try to understand what the problem is, and try to find out all the possible solutions for that particular problem. So वो brainstorming session होता है। उसके बाद डिजाइन फेज आएगा, जब जैसे ही वो एनालिसिस कंप्लीट होता है तो डिजाइन में आ जाते हैं, डिजाइन के बाद कोडिंग में आ जाते हैं, कोडिंग के बाद क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है कि अभी तक जो भी काम हुआ है वो क्वालिटी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो हुआ कि नहीं। अगर फॉलो हो गया तो डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब पहला जो इंक्रीमेंट है वो कस्टमर को दे देते हैं। फिर वापस फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। ऐसे पूरा ये प्रोसेस बार बार इटरेशन है, इसलिए सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट किया है। ये चलता रहेगा, बट ये कितने बार इटरेशन होगा वो फिक्स होता है, ठीक है, प्री डिसाइडेड होता है। So that is what is represented using agile development methodology, and it is an iterative process and incremental process बोला जाता है इसको। incremental model भी बोलते हैं, incremental model भी कहा जाता है इसको। Fourth type of development model is rapid application development model, इसको RAD मॉडल भी बोलते हैं। RAD मॉडल, रैड मॉडल भी कहते हैं, या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी कहते हैं। सो द वेरी मेन very prominent feature of this kind of development methodology is that it is meant to build software in a record time, large software in a record time। ये large and very large kind of products के लिए बनता है, मतलब यूज किया जाता है। लार्ज एंड वेरी लार्ज, ये स्मॉल टाइप या माइक्रो लेवल के सॉफ्टवेयर साइज, या स्मॉल टाइप के या वेरी स्मॉल टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता है। इट इज मेंट फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स और वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स। लार्ज प्रोजेक्ट्स का मतलब वो प्रोजेक्ट्स हैं दैट टेक मोर देन 2 years ऑफ फॉर डेवलपमेंट। तो लार्ज एंड वेरी लार्ज मतलब 5 to 10 years जिसमें लगता है। सो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को जो 5 साल में बन सकते हैं, उसको 1 साल में बना के दिखाता है। ठीक, सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल स्पेशलिटी इज टू रिड्यूस द ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम। बट ये इतना आसान नहीं होता। कैसे आसान नहीं होगा? बिकॉज दो प्रोडक्ट 5 साल में बनना है, उस प्रोडक्ट को 1 साल में अगर बनाना हो तो यू नीड ह्यूज मैन पावर। आपके पास बहुत सारा मैन पावर होना चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। इफ योर कंपनी इज रिच विद दीज रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, एम्पल रिसोर्सेज अगर हैं, तो फिर आप रैड मॉडल को, नहीं तो रैड मॉडल अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। रैड मॉडल में क्या होता है, वी क्रिएट टीम्स। टीम्स जो है वो पैरेलली वर्क करते हैं। अब ये टीम पैरेलली वर्क कब करेगा? जब इनको पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स आप देंगे। सो आपने क्या किया कि 10 साल में
से फॉर एग्जांपल 5 साल में, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, 5 साल में आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा 5 साल में बनेगा, अगर सीक्वेंशियली करें तो 5 साल में 5 मेजर मॉड्यूल्स बनेंगे, और ये पांचों मॉड्यूल जो है वो पैरेलली एग्जीक्यूटेबल है, पैरेलली सॉल्वेबल है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो आपको पूरे प्रोजेक्ट को पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे मतलब आपको पैरेलली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उन पैरेलली सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोडिंग हो सके पैरेलली। मतलब अगर मैं मॉड्यूल 1 को शुरू कर रहा हूं तो मुझे मॉड्यूल 2 को भी साथ में शुरू करने का जो है वो फ्रीडम होना चाहिए, मॉड्यूल 3 को भी स्टार्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए, मॉड्यूल 4 को भी स्टार्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए, मॉड्यूल 5 को भी स्टार्ट करने का फ्रीडम होना चाहिए। तो अगर मैं पांचों मॉड्यूल्स को एक साथ स्टार्ट कर सकूं, एंडिंग उसकी कभी भी हो सकती है, एंडिंग उसकी कभी भी हो सकती है, लेकिन जब एंड हो जाएंगे सभी मॉड्यूल्स, व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स एंड, देन वी शुड बी एबल टू इंटीग्रेट देयर आउटपुट्स सो दैट द एंटायर प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो उस केस में, सिर्फ उसी केस में आप रैड मॉडल यूज कर सकते हैं। सो जो 5 साल में 5 मॉड्यूल्स बनेंगे, उन मॉड्यूल्स को आप पैरेलली एग्जीक्यूटेबल 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके 5 टीम्स प्रोवाइड कर देंगे, और पांचों टीम्स मिलकर उनको एक साथ डेवलप करेंगे, और 1 साल के अंदर आपका मॉड्यूल्स बनकर तैयार हो जाएगा। सो पांचों मॉड्यूल्स जो 5 साल में सीक्वेंशियली डेवलप हो सकते थे, 1 साल में पांचों मॉड्यूल्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो पैरेलली जो है सॉल्व हो रहे हैं, और उनका आउटपुट इंटीग्रेट करके आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो इस टाइप के अप्रोच को हम बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। यहाँ पे देर आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग टीम्स एंड दे वर्क फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए है, where the problem can be disintegrated into parallelly developable modules and finally integrated at the end. So we need sufficient human resources, software resources, hardware resources and many things. अगर एम्पल है तो ही हम लोग जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। सो दे आर मेंट फॉर लार्ज एंड वेरी लार्ज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड द मेन attractive feature is that the large projects can be completed within a record time. So इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि टीम्स दिया है, टीम #1, टीम 2, टीम 3 ऐसे लिखा हुआ है। बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, टेस्टिंग एंड टर्नओवर। ये पूरा जो फेज आप देख रहे हैं, ये फेजेस देखिए रिपीट हो रहा है, ठीक। तो हर टीम इन्हीं फेजेस को करेगा, परफॉर्म करेंगे, लेकिन हर टीम के पास अलग अलग मॉड्यूल्स रहेगा जो जिसपे वो वर्क करेंगे, जो पैरेलली एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल्स होने चाहिए, ठीक है, पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स होने चाहिए। मतलब उन मॉड्यूल्स का इंटरडिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट में टेस्टिंग एंड टर्नओवर करने के बाद उनको उनके आउटपुट को इंटीग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। इस केस पे ही रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक। सो बिजनेस मॉडलिंग का मतलब है टू एनालाइज, टू परफॉर्म, इट इज एनालिसिस फेज एक्चुअली, एनालिसिस करना कि किस चीज की वो पर्टिकुलर मॉड्यूल किस पर्पस के लिए बनना चाहिए। फिर डेटा मॉडलिंग हो रहा है, डेटा मॉडलिंग में डिजाइन होता है, एक्चुअली इट इज अ डिजाइन फेज। प्रोसेस मॉडलिंग में कोडिंग होता है, कोडिंग के बाद एप्लीकेशन जनरेशन होता है। कोडिंग बोलना चाहिए, ये प्रोसेस मॉडलिंग में एक्चुअली जो है वो प्रोसीजर्स को डिफाइन किया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। और एप्लीकेशन जनरेशन में कोडिंग होता है, कोडिंग करने के बाद फिर टेस्टिंग करते हैं। सो दीज फेजेस आर पैरेलली डन ऑन पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स। सो इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ठीक। सो दीज आर द मॉडल्स। अभी हम लोग नेक्स्ट मॉडल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया है उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सो वी हैड सीन वाटरफॉल मॉडल, which is also known as linear sequential model. We had seen prototyping model, which is an iterative model, and it is meant for small scale and medium scale kind of projects, and customer satisfaction के basis पे प्रोडक्ट आगे बढ़ता है। Agile software development methodology देखा है अपन ने, जिसको हम लोग बोलते हैं incremental approach भी बोलते हैं। Incremental approach में customer satisfaction is highly guaranteed, and ये medium to large projects में यूज किया जा सकता है। स्मॉल
प्रोजेक्ट्स में भी यूज किया जा सकता है, और इटरेटिव प्रॉपर्टी है, रिपीटिशंस हो रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होता है हर एक इटरेशन में प्रोडक्ट में। ठीक, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी बोलते हैं, दिस ए फास्ट वे ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही फास्ट तरीके से डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। और फोर्थ अभी अपन ने देखा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, जहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स जो ईआरपी और एमआईएस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स या बहुत बड़े बड़े ह्यूज साइज की ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाता है। सो उसमें भी मैंने अब प्रॉपर्टीज बताई हैं, पैरेलली सॉल्वेबल मॉड्यूल्स होने चाहिए, तभी जाके ये चीज पॉसिबल है। और आपके पास ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज होने चाहिए दैट यू कैन इम्प्लीमेंट पैरेलली एट द सेम टाइम टू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो होपफुली सभी को आइडिया लग गया होगा द डिस्कशन दैट वी हैव डन टुडे। एनी डाउट्स रिलेटेड टू एनीथिंग प्लीज आस्क मी।